Good morning, dear children. Welcome back to Grade 8 Hindi online class. Today we are going to learn lesson 4. The topic is Sarojini Naidu. Who was Sarojini Naidu? Do you know? Do you know about her? Sarojini Naidu was a freedom fighter as well as a poetess. There were many freedom fighters were there, isn't it? Can you say some name? Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Gopalakrishna Gokhale, Tilak. Like that, many freedom fighters were there, isn't it? From that, one of the great person, Sarojini Naidu. इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था? इनका जन्म कब हुआ था? When she was born. She was born on 13th February 1878. इनका जन्म 13 फरवरी इनका जन्म 13 फरवरी 1878 में हुआ था. इनका जन्म 13 फरवरी 1878. 1878 means 1878. 13 फरवरी means February. 1878 1878 में हुआ था. इनका जन्म कहाँ हुआ था? Where was she born? She was born in हैदराबाद. उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था. उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था. She was a famous personality and due to her poetic qualities she was known as Nightingale of India. Do you know this? She was the Nightingale of, who was the Nightingale of India? Sarojini Naidu was the Nightingale of India. Okay, उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय. उनके पिता का नाम अघोरनाथ चट्टोपाध्याय. His father was अघोरनाथ चट्टोपाध्याय. Her father name was अघोरनाथ चट्टोपाध्याय. अच्छा, after that we can study about her deeply in the book. What given in the book we can learn. Before that you take page number 18. Page number 18. For reading purpose only I am reading this book. You are weak in read, I know. Everybody must know to read. Everybody must know to read. If you read only you can improve your reading skill. Okay. So you all look the book while I am reading. Next, if you need meaning, you write it. I saw one of the child has written everything. What I have said, everything written in the book. So the child is looking the book. Okay, like that everybody should look the book. Then you can read. Now, next, homework. Handwriting book is there, isn't it? Very few of them submitting that. So, all have to write weekly 2 pages. Neatly you have to write in the handwriting book. Weekly 2 pages enough. Okay, you have to write and submit in the Saturdays. Understood? Now listen here. Srimati, what's the topic? Srimati Sarojini Naidu. Okay, she was the freedom fighter. स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाली एक नारी थी. अच्छा, नाउ बुक देखो. भारत की वीरांगनाओं में श्रीमती सरोजिनी नायडू का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है. भारत की वीरांगनाओं मीन्स ब्रेव वुमेन. श्रीमती सरोजिनी नायडू का नाम, सरोजिनी नायडू इज नेम, अत्यंत वेरी, आदर के साथ विद रेस्पेक्ट, आदर रेस्पेक्ट के साथ विद रेस्पेक्ट लिया जाता है. टेकन. श्रीमती Sarojini Naidu, his name was taken with respectably. So Sarojini Naidu was one of the brave women in India. Sarojini Naidu was first in line. भारत की वीरांगनाओं में श्रीमती सरोजिनी नायडू का नाम अत्यंत आदर के साथ लिया जाता है. Sarojini Naidu was one of the brave women in India. Okay, her name was taken respectfully. नेक्स्ट, भारतीय स्वाधीनता के संग्राम में अपने जिस वीरता एवं आदर्श का परिचय दिया था उस पर भारतवासियों को गर्व है. सी इंट्रोड्यूस्ड हर braveness and ideal during the freedom struggle. For that, Indians are proud of her. Indians are proud of her
this talent, this braveness and idea. Okay. Next, Bharatwasi means Indians. We are the Bharatwasi. Those who are living in Bharat, India, Bharatvasi. Okay. Garv means proud. The underlined words are the meanings. Study portion. Okay. Garv, proud. देवी सरोजनी नारी होते हुए भी नारी वर्ड्स मीनिंग नारी लेडी ओके और वुमन देवी सरोजनी नारी होते हुए भी ऑल्सो शी वॉज ए लेडी इवन पुरुषों से किसी बात में कम न थी शी वॉज लाइक मैन डूइंग एवरीथिंग आपकी देशभक्ति तथा त्याग को देख महात्मा गांधी जी तक चकित थे आपकी देशभक्ति पैट्रियोटिज्म तथा त्याग सैक्रिफाइस को देख मीन्स लोग महात्मा गांधी जी तक चकित थे चकित मीन्स सरप्राइज महात्मा गांधी जी ऑल्सो सरप्राइज्ड अबाउट हर पैट्रियोटिज्म एंड sacrifice. Mahatma Gandhi ji saw her patriotism and sacrifice. He surprised about her patriotism and sacrifice. Okay, next para look. सरोजिनी देवी का जन्म सन 13 फरवरी 13 फरवरी 1878 को हैदराबाद में हुआ था. व्हेन एंड वेयर शी वाज बोर्न 13 फरवरी 1878 को हैदराबाद में हुआ था. शी वॉज बोर्न इन हैदराबाद. उनके पिता डॉक्टर अघोरनाथ चट्टोपाध्याय. हर फादर वॉज अघोरनाथ चट्टोपाध्याय विज्ञान के सुप्रसिद्ध पंडित थे. ही वॉज द फेमस शी वॉज फेमस इन साइंस. शी वॉज द फेमस स्कॉलर ऑफ साइंस. ओके नेक्स्ट वे मूलतः बंगाली थे. देन शी वॉज द बंगाली थे लेकिन उनके पूर्वज हैदराबाद में आकर बस गए. पूर्वज मीन्स ancestors. हर मुन्नोरगल ancestors means मुन्नोरगल where they lived in the Hyderabad. Actually they are from Bengal. They are Bengalis but her Sarojini's ancestors came lived in Hyderabad. आकर बस गए. They stayed in the Hyderabad. डॉक्टर अघोरनाथ जी ने अपने पढ़ाई के समाप्त होने पर हैदराबाद में निजाम कॉलेज की स्थापना करवाई. डॉक्टर अघोरनाथ जी अपने पढ़ाई के समाप्त होने पर आफ्टर फिनिश्ड एजुकेशन हैदराबाद में निजाम कॉलेज की स्थापना कराई. ही आर सिचुएटेड है निजाम कॉलेज और अपने अथक परिश्रम के द्वारा उसे बढ़ाया था. ही डेवलप्ड दैट कॉलेज विथ हिज हार्ड वर्क. अथक परिश्रम हार्ड वर्क से द्वारा थ्रू हिज हार्ड वर्क ही डेवलप्ड दैट कॉलेज. इसका पूरा श्रेय उन्हीं को प्राप्त है. दिस फेमस ऑफ दैट दिस फेमस दिस टू हिम. श्रेय मीन्स फेमस. उनको प्राप्त है. ही ओनली गॉट दिस फेमस. सरोजनी अपने पिता की पहली संतान थी. सरोजनी नाउ दिस लुक. सरोजनी अपने पिता की पहली संतान थी. सरोजनी वॉज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ इन हर फैमिली. सरोजनी अपने पिताजी की पहली संतान थी. शी वॉज द फर्स्ट चाइल्ड इन हर फैमिली. इसलिए उनका पालन पोषण बड़े लाड प्यार से के साथ हुआ. सो शी वॉज द अफेक्शनेट चाइल्ड. उनके माता पिता दोनों सुशिक्षित थे. सुशिक्षित मीन्स एजुकेटेड. माता पिता मदर एंड फादर दोनों बोथ. सुशिक्षित मीन्स एजुकेटेड. हर फादर एंड मदर वेर एजुकेटेड. इसलिए घर में अंग्रेजी बोली जाती थी. सो दे स्पोक इंग्लिश इन द हाउस. इसलिए घर में अंग्रेजी बोली जाती थी. अंग्रेजी इंग्लिश घर में इन द हाउस दे स्पोक इंग्लिश. सरोजनी ने बचपन में वर्ड्स में बचपन चाइल्डहुड बचपन में ही अंग्रेजी बोलना पढ़ना और लिखना सीख लिया. क्यों? बिकॉज इन हर फैमिली दे यूज टू स्पीक इंग्लिश. सो सी फ्रॉम द चाइल्डहुड इटसेल्फ शी ऑल्सो यूज टू स्पीक इंग्लिश एंड रीड इंग्लिश एंड राइट इंग्लिश. ओके सीख लिया. सी लर्न्ड. 11 साल की उम्र में अपने मद्रास विश्वविद्यालय की मैट्रिक परीक्षा पास की. अनदर क्वेश्चन. कहाँ मैट्रिक परीक्षा पास की थी? कहाँ? वेयर शी वॉज पास्ट मैट्रिकुलेशन.
Madras Vishwavidyalaya, Madras University. The University of Madras, she has completed her matric exam. What is the year? 11 years old. सरोजनी को प्रकृति तत्व प्रतिमा प्राप्ति थी. इनकी प्रतिभा का परिचायक उनकी 13 साल की उम्र में रचित लेडी ऑफ द लेक नामक 1300 पंक्तियां की कविता है. सी लाइक द नेचर, attracted by the nature, and she has written a poem. How many lines are there? 1300 lines are there in that poem. That the poem title is Lady of the Lake. Title of the poem is Lady of the Lake. How many lines are there? 1300 lines are there in the poem. Okay. सरोजनी अपनी असाधारण प्रतिभा के बल पर निजाम सरकार की छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकी. सो सी गॉट द स्कॉलरशिप इन हर बिकॉज ऑफ हर टैलेंट, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, असाधारण प्रतिभा, एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ हर असाधारण एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट सी गॉट द स्कॉलरशिप फ्रॉम द गवर्नमेंट, निजाम गवर्नमेंट. नेक्स्ट, उच्च शिक्षा पाने के हेतु इंग्लैंड चली गई. फॉर द हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा फॉर द हायर एजुकेशन सी वेंट टू इंग्लैंड. 3 साल तक किंग्स कॉलेज में शिक्षा प्राप्त पाती रही. 3 years सी लर्नड इन किंग्स कॉलेज. इस बीच में इन बिटवीन दैट इनकी इटली आदि देशों के सुंदर, इटली मीन्स इटाली के, इटली आदि देशों के सुंदर दृश्यों को देखने, फॉर लुकिंग दिस ब्यूटी ऑफ द दिस दृश्यों सीनरी, सी अच्छा मौका मिला. सी गॉट ए गुड चांस टू लुक द सीनरीज, ब्यूटीफुल सीनरीज इन इटाली. उन दृश्यों ने सरोजनी के हृदय पर अपना प्रभाव डाला तथा उनकी कल्पना कविता में साकार हो उठी. वॉट एवर सी saw there, this she dreamed after it become real. Okay, that's all. Today I am concluding this from here. Next, you all have to read this lesson, and then only reading will come. Please read at least one para every day. Okay. Next, the meanings I am giving, study portion. Look here. This अंग्रेजी में अर्थ शब्दार्थ meanings. गर्व, proud. What's the word गर्व? Proud. गर्व. How to read? गा इर्वा, गर्व. Proud. गर्व, proud. पूर्वज, ancestor. पूर्वज, ancestor. पूर्वज, ancestor. श्रेय, fame. श्रेय, fame. बचपन, childhood. बचपन, childhood. प्रकृति, nature. प्रकृति, nature. छात्रवृत्ति, scholarship. छात्रवृत्ति, scholarship. What's the word? छात्रवृत्ति, scholarship. Gore, horrible. Gore, horrible. विचलित, unsteady. विचलित, unsteady. कविता संग्रह, the collection of poetry. कविता संग्रह, the collection of poetry. राजनीतिक, political. राजनीतिक, political. शादी, marriage. शादी, marriage. अधिवेशन, session. अधिवेशन, session means मानाड. Okay. सक्रिय means to take part. सक्रिय, to take part. Listen once more. गर्व, proud. गर्व, proud. पूर्वज, ancestor. पूर्वज, ancestor. श्रेय, fame. श्रेय, fame. बचपन, childhood. बचपन, childhood. प्रकृति, nature. प्रकृति, nature. छात्रवृत्ति, scholarship. छात्रवृत्ति, scholarship. Gore, horrible. Gore, horrible. विचलित, unsteady. विचलित, unsteady. कविता संग्रह, the collection of poetry. कविता संग्रह, the collection of poetry. राजनीतिक, political. राजनीति, political. राजनीतिक, political. शादी, what's the meaning of शादी? Marriage. अधिवेशन, what's the meaning of अधिवेशन? Session. सक्रिय, to take part. सक्रिय, to take part. Did you understand, children? Study well, okay? You have to write in the booklet and study this.